Long ago, in a village, lived two friends, Dharambuddhi and Pabuddhi. One day, Pabuddhi thought, I should persuade Dharma to take me to far off land and earn a lot of money through his business skills. बहुत समय पहले एक गांव में दो दोस्त रहते थे, धर्मबुद्धि और पापबुद्धि। एक दिन पापबुद्धि ने सोचा, मुझे धर्म को दूर देश में ले जाने और उसके व्यापार कौशल के माध्यम से खोए हुए पैसे कमाने के लिए राजी करना चाहिए। With plan in mind, he went to Dharma and said, My friend, we are getting older. If we keep on living here, then we won't be able to earn much. But if we travel and move to other cities, then we can earn a lot more using your talent. मन में योजना बनाकर वो धर्म के पास गया और बोला, मेरे दोस्त, हम बूढ़े हो रहे हैं। अगर हम यहीं रहते रहेंगे तो ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, लेकिन अगर हम घूमेंगे और दूसरे शहरों में जाएंगे तो तुम्हारे कौशल का इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हैं। Dharma liked the idea and they both set out for journey. During their journey, both of them earned lots of money due to business talent of Dharma. After traveling for years, it was time for them to return home. धर्म को विचार पसंद आया और वे दोनों यात्रा के लिए निकल पड़े। अपनी यात्रा के दौरान इन दोनों ने धर्म की व्यावसायिक प्रतिभा के कारण खूब पैसा कमाया। वर्षों तक यात्रा करने के बाद अब उनके घर लौटने का समय हो गया था। As they were entering their city, Pabuddhi said to Dharma, It is not safe to take home all this wealth. We shall bury most of our money in some secret place in this forest, and whenever one of us need money, then we can come here and take whatever we need. जैसे ही वे अपने नगर में प्रवेश कर रहे थे, पापबुद्धि ने धर्म से कहा, ये सारी संपत्ति घर ले जाना सुरक्षित नहीं है। हम अपना अधिकांश धन इस जंगल में किसी गुप्त स्थान पर गाड़ देंगे और जब भी हम में से किसी को धन की आवश्यकता होगी तो हम यहाँ आ सकते हैं और हमें जो भी चाहिए वो ले जा सकते हैं। Dharma agreed and then both of them dug a pit and buried most of their earnings in it and covered it carefully and left. Later, at midnight, Pabuddhi went back to secret place in forest and stole all that money and brought it to his home. धर्म सहमत हो गया और फिर उन दोनों ने एक गड्ढा खोदा और अपनी अधिकांश कमाई उसमें दबा दी और उसे सावधानी से ढक दिया और चले गए। बाद में आधी रात को पापबुद्धि जंगल में गुप्त स्थान पर वापस आया और सारा धन चुराकर अपने घर ले गया। Next morning, when Dharma went to Pabuddhi, asked him to come with him to forest so that he can get some money as he was in need of that money. अगली सुबह जब धर्म पापबुद्धि के पास गया तो उसने उसे अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहा ताकि उसे कुछ धन मिल सके क्योंकि उसे उस धन की आवश्यकता थी। When both of them arrived at secret place and dug there, they found pit empty at once. Pabuddhi began shouting loudly, Dharma, you stole the money and nobody else. This pit was covered carefully. जब वे दोनों गुप्त स्थान पर पहुंचे और वहां खुदाई की तो गड्ढा खाली मिला। तुरंत पापबुद्धि जोर जोर से चिल्लाने लगा, धर्म, तुमने ही पैसे चुराए हैं और किसी ने नहीं। इस गड्ढे को सावधानी से ढक दिया गया था। You must give me that half of our earning that was buried there. Dharma denied, and at this, Pabuddhi said that he will take this to dispute to court. तुम्हें हमारी कमाई का आधा हिस्सा जो वहां दबा हुआ था मुझे देना होगा। धर्म ने इनकार कर दिया और इस पर पापबुद्धि ने कहा कि वो इस विवाद को अदालत में ले जाएगा। When
case was presented before court, judge asked them to produce witness. Pabuddhi said, I can produce gods or forest as witness. They will determine who is guilty and who is innocent. जब मामला अदालत में पेश किया गया तो न्यायाधीश ने उन्हें गवाह पेश करने के लिए कहा। पापबुद्धि ने कहा, मैं जंगल के देवताओं को गवाह के रूप में पेश कर सकता हूँ। वे तय करेंगे कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। Judge agreed. He asked both parties to be present next morning at forest for hearing. Happy at judge order, Pabuddhi went to his father's house and said, Father, I have stolen all Dharma's money, yet I have filed case in court and I can win it only with your help. Otherwise, I will lose all the money. न्यायाधीश सहमत हुए। उन्होंने दोनों पक्षों को अगली सुबह सुनवाई के लिए जंगल में उपस्थित होने को कहा। न्यायाधीश के आदेश से खुश पापबुद्धि अपने पिता के घर गया और कहा, पिताजी, मैंने धर्म का सारा धन चुरा लिया है, फिर भी मैंने अदालत में मामला दायर किया है और मैं इसे केवल आपकी मदद से जीत सकता हूँ, अन्यथा मैं सारे पैसे खो दूंगा। Father asked, What I have to do? There is a big tree there, and you have to go there and hide in the hollow of tree. Tomorrow morning, when everyone comes, I will ask in name of God to tell you the truth. Then it is your turn to declare that Dharma is a thief. पिता ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? वहाँ एक बड़ा पेड़ है और आपको वहां जाकर पेड़ के खोखले में छिपना होगा। कल सुबह जब सब आ जाएंगे, मैं भगवान का नाम लेकर आपसे सच बताने के लिए कहूँगा। तो फिर ये घोषित करने की आपकी बारी है कि धर्म चोर है। अर्ली मॉर्निंग, Pabuddhi father left for forest and hid in hollow of tree. When everyone came, Pabuddhi shouted, O God of forest, declare who among us is guilty. Father hidden in tree hollow shouted back, Dharma is the one who stole money. सुबह सुबह पापबुद्धि के पिता जंगल की ओर चले गए और पेड़ के खोखले में छिप गए। जब सभी लोग आए तो पापबुद्धि चिल्लाया, हे वन देवता, घोषित करो कि हम में से कौन दोषी है। पेड़ की ओट में छुपे पिता ने कहा, धर्म वह है जिसने पैसे चुराए। Just then, judge and others sat down to decide what punishment they should give to Dharma. Dharma understood Pabuddhi's trick, and in meantime he filled tree hollow with rugs and hay, and then threw a burning matchstick into it. तभी न्यायाधीश और अन्य लोग ये तय करने बैठ गए कि उन्हें धर्म को क्या सजा देनी चाहिए। धर्म को पापबुद्धि की चाल समझ में आ गई और इस बीच उसने पेड़ के खोखले हिस्से को चीथड़ों और घास से भर दिया और फिर उसमें एक जलती हुई माचिस की तीली फेंक दी। Fire started and Pabuddhi father had no other choice, so he get out of tree and had to tell truth about Pabuddhi plan and about him stealing all the money. आग लग गई और पापबुद्धि के पिता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए वो पेड़ से बाहर निकले और उन्हें पापबुद्धि की योजना के बारे में और सारे पैसे चुराने के बारे में सच्चाई बतानी पड़ी। After listening to father's confession, judge punished पापबुद्धि for his misdeed. पिता की स्वीकारोक्ति सुनने के बाद न्यायाधीश ने पापबुद्धि को उसके कुकर्म की सजा दी।